Hello dear children and welcome back to the YouTube channel of Smt.R.S.Kalaria Primary School. Today we will see 4th chapter of Environment of Standard 3rd. The name of the chapter is Our First School. So let us see our hard words and their meanings first. Our first word is thought. Thought means an idea or opinion. Opinion means हमारा विचार या हमारी सोच. Next word is pet name. Children, at home you may be called by some other name rather than your real name. That name is known as pet name. It is also known as nickname or loving name. The name with which your family members call you with love. Okay? Next is Dhobis. Dhobis is not actually the English word. It is actually Hindi word. The meaning is washermen. The people who wash clothes. Then next is lend a hand. It is actually a phrase. Lend means to give. Now what do you mean by to give a hand? It means what? हाथ दे देना अपना किसी को? No. Actually it means help in work. To assist somebody in completing his work. Okay? Next is enter. In your book the word is given as entering. Okay? From enter the word entering has come. It means to come or go into a place. किसी भी जगह पर प्रवेश करना, आना या जाना. ओके? Our next word is practice. Practice का मतलब ऐसे तो क्या होता है? ज़्यादा रिवाइज करना या बहुत बार प्रैक्टिस करना. But here in our chapter the meaning is custom or habit. अब customs क्या होते हैं? रीति रिवाज. घर में हमारे कुछ रूल्स होते हैं, काम करने के तरीके होते हैं, इनको हम प्रैक्टिस बोलते हैं. Our last word is to imitate. It means to copy. कॉपी करना मतलब क्या होता है? किसी की नकल उतारना. हम क्लास में करते हैं ना, एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं. टीचर्स की भी कभी कभी हम कॉपी करते हैं, पता है? वो होता है इमिटेट करना. Now let us start with our lesson. Lesson number 4, our first school, page number 25 of your textbook, environment textbook. Mostly this chapter is based on activities. So we will start with our first paragraph. We learn so many things when we come to school. जब हम स्कूल आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. टीचर्स हमें पढ़ाते तो हैं बट साथ साथ और भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं. स्पोर्ट्स है, एक्टिंग है, डांस, ड्रामा, isn't it? But do you know which is our first school? हम स्कूल में एंट्री कब करते हैं, एडमिट कब होते हैं? When we are 3 or 3.5 year old. But 3 years तक हमारा एक फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ पर हम बहुत सारी बातें सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. तो ये कौन सी जगह है? हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है? इट इज़ आवर फैमिली. आप लोगों में से बहुत बच्चों ने बोला होगा होम, इज़न्ट इट? होम तो है ही, बट होम में हम खाली घर में तो कुछ नहीं सीख सकते ना. इट इज़ आवर फर्स्ट फैमिली विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. एंड कैन यू टेल मी हु इज़ आवर फर्स्ट टीचर? येस, यू आर राइट. शी इज़ आवर मदर. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हमारी फैमिली हमें बहुत कुछ सिखाती है. बेसिकली तो मदर सिखाती हैं बोलना, चलना, खाना. हम जब छोटे होते हैं ना तो हमें स्पून पकड़ना भी नहीं आता है. That all these things are taught to us by our family members and first efforts are taken by always mothers. Much before we learn from anywhere else, we are taught many things from our family. This is because we are close to our family. We are so close to our family, but we really never give it a thought. हम कभी ये सोचते ही नहीं हैं, कभी हमारे ध्यान में ही नहीं आया. हमसे कोई पूछेगा ना विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल, तो हम इस स्कूल का ही नाम बताते हैं जहाँ हमने प्ले हाउस में या नर्सरी में एडमिशन ली होती है. बट वी नेवर से कि माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट स्कूल. सो नाउ ऑनवर्ड्स इफ एनीबडी आस्क्स यू विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट विल बी योर आंसर? येस, माई फैमिली एंड माई मदर इज़ माई फर्स्ट टीचर. लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. तो चलो अब हम अपनी फैमिली के बारे में बात करें. Your first picture is draw or paste a picture of your family. You can see on page number 25 a blank space is given to you. In this space you have to draw or paste the picture of your family. Next activity is who all are there in your family. Write their names and how they are related to you.
कॉलम्स में क्या क्या दिया है, नेम एंड रिलेशनशिप। तो नेम के कॉलम में हमें नाम लिखना है अपने फैमिली मेम्बर्स का और उनका हमारे साथ क्या रिलेशन है। सपोज यू हैव रिटन द नेम ऑफ योर फादर, तो रिलेशनशिप वाले कॉलम में आप लिखेंगे फादर। देन बिलो दैट यू कैन राइट द नेम ऑफ योर मदर और उसके सामने आप लिखेंगे रिलेशन में मदर। लाइक दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू हैव टू कवर। सो चिल्ड्रन, come to page number 26 of your textbook. Have you all opened your books or not? Are you ready with your books? Yes, whenever you sit for preparing your videos or your classes, you should sit with your books ready. So now our next activity is write the relationship between any two members of your family, such as husband and wife, brother, sister, mother and daughter. Any two pairs you can take from your family members. नेम्स ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा था हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं, मदर एंड फादर दोनों का नाम, और सामने लिख दीजिए हस्बैंड एंड वाइफ, और वाइफ एंड हस्बैंड जिसका नाम पहले लिखा है, मदर का पहले लिखा है तो वाइफ लिखेंगे, ओके। और अगर पापा का नाम पहले आपने लिखा है तो आप हस्बैंड एंड देन वाइफ लिखोगे। देन द अदर पेयर में भी ब्रदर एंड सिस्टर। आप अगर घर में ब्रदर सिस्टर सब हो, सिबलिंग्स आप लोग हैं 2-3 लोग, तो आप ब्रदर सिस्टर्स के पेयर का नाम लिख सकते हैं। तो उसमें भी ध्यान रखना, पहले अगर ब्रदर का नाम लिखा है और बाद में सिस्टर का, तो आप रिलेशन में ब्रदर एंड सिस्टर ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज मदर एंड डॉटर का रिलेशन लिख सकते हैं, एंड इवन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ भी होते हैं घरों में, इजंट इट। तो कोई भी 2 मेंबर्स के नाम लिख के उनका आपस में क्या रिलेशन है वो आपको इस एक्टिविटी में लिखना है। कैन यू डू इट और नॉट? यस, वेरी गुड। नाउ अवर नेक्स्ट एक्टिविटी और क्वेश्चन इज व्हाट डू योर फैमिली मेंबर्स कॉल यू लविंगली। जो हमने पेट नेम की बात की ना, निक नेम की, ये वहाँ पर आया है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको रियल नेम से नहीं बुलाते हैं, ओके। सपोज आपका नाम निकिता है तो दे मे कॉल यू निक, इजंट इट। और आपका नाम मोहित है तो आपको वो मोंटू भी बुला सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे निक नेम्स होते हैं, छोटू, मोटू, ऐसे सारे नाम जो होते हैं वो निक नेम्स में आते हैं। सो डू यू हैव अ पेट नेम? आपका कोई निक नेम है, पेट नेम है? हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या बुलाते हो? इवन योर ब्रदर सिस्टर्स मे बी कॉल्ड बाय निक नेम, ओके। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। और एक बात बताऊँ आपको, कुछ बच्चे तो अपने पापा को पूरा पापा न बुला के पा भी बुलाते हैं, डैडी न बोल के डैड भी बोलते हैं, तो ये सारे निकनेम्स में आ जाते हैं। मम्मी को पूरा मम्मी न बोल के माँ भी बुलाते हैं, या इवन दे से मॉम, इजंट इट? मॉम एंड पॉप्स, ये लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है अभी स्टूडेंट्स का। 2 persons in the picture look a lot like each other. Now you can see this picture on page number 26. इसमें एक फैमिली दी हुई है, मदर, फादर एंड 2 daughters आर देयर। इनमें आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही हैं, उनके फेस फीचर्स मिल रहे हैं, यस। आईज़ मिलती जुलती लगती हैं, नोज़, इवन लिप्स। तो फेस की बनावट या फीचर्स जो होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स से मिलते जुलते होते हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? तो इनका क्या रिलेशन होगा? मदर, फादर एंड 2 sisters। उसमें से ऐसा भी हो सकता है एक सिस्टर अपने फादर जैसी दिखती हो और दूसरी सिस्टर मदर जैसी दिखे, ओके। या फिर 3 लोगों के भी फेस मिलते जुलते हो सकते हैं घर में। तो ऑल दीज आर नोन एज सिमिलैरिटीज़। और सिमिलैरिटीज़ के लिए ही एक और वर्ड यूज़ किया गया है, रिजेम्बलेंस, फैमिली रिजेम्बलेंस, दैट आई विल टीच यू आफ्टर सम टाइम। Now let us see one story about Anwari's family. The older members of Anwari's family work as Dhobis. Anwari is a girl और उसके घर के जो बड़े हैं, older members of the family हैं, वो क्या करते हैं? धोबी का काम करते हैं। That means they are washermen. They wash others' clothes. All the members of the family lend a hand in washing. lend a hand, मैंने अभी यहाँ पे आपको मीनिंग बताया, इट मीन्स टू हेल्प इन वर्क। तो अनवरी के जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके ओल्डर जो मेम्बर्स हैं फैमिली के, उनको वॉशिंग में हेल्प करते हैं। वॉशिंग के अलावा और क्या क्या काम होते हैं? ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। ड्राइंग मीन्स कपड़े सुखाना, आयरनिंग मीन्स आयरन करना, कपड़े प्रेस करना, इस्त्री करना।
Anvari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. अनवरी और उसका एक कज़िन है तौफीक, ये दोनों घर के छोटे बच्चे हैं, इसीलिए ये दोनों अभी अपने बड़ों से वॉशिंग का वर्क सीख रहे हैं और सीखते सीखते उनकी हेल्प भी करते हैं. इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ येस व्हाट? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्क होता है जिसमें फैमिली के बाकी मेंबर्स भी हेल्प करते हैं? दे लेंड देयर हैंड इन द वर्क ऑफ द फैमिली. अगर हाँ, अगर ऐसा कोई वर्क है तो वो क्या है? तो अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर फैमिली वाइज इंडिविजुअली ये अलग अलग आंसर होंगे, सेपरेट होंगे आंसर सबके एक दूसरे से. तो ये आंसर आपको खुद लिखना है. ओके. डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपनी फैमिली को ये सब काम करने में हेल्प करते हो? इफ़ येस देन राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंगली. We learn many things from our family members. Anvari and her cousins learned cycling from her uncle. हम अपने फैमिली मेम्बर्स जो हमारे बड़े मेम्बर्स होते हैं ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. जैसे हमारी इस स्टोरी में अनवरी और उसके कज़िन ने साइकिलिंग सीखी है अपने अंकल से. तो आपने अपने फैमिली मेम्बर से क्या क्या सीखा हुआ है? डिस्कस इन योर ग्रुप्स. यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. वॉट एंड फ्रॉम whom? आपने क्या सीखा और अपने किस फैमिली मेम्बर से सीखा? हैज़ एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू? और अगर आप अपने घर में बड़े चाइल्ड हैं तो आपसे छोटे ब्रदर सिस्टर्स होंगे या आपके कजिन्स होंगे, तो क्या उन्होंने आपसे कुछ सीखा है? देखिए, आप कुछ बहुत बड़ा ना सिखा पाएँ, बट एटलीस्ट अल्फ़ाबेट्स लिखना, गिनती करना, काउंटिंग करना 1 2 3 4 या टेबल सिखाना, और अदरवाइज आर्ट एंड ड्राइंग, ये तो हम अपने छोटे भाई बहनों को सिखा सकते हैं ना. नाउ थिंक एंड राइट. व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई. किसके पास जाते हो जब आप बहुत दुखी होते हो, जब रोना आता है? यस, वी गो टू अवर मदर. तो इस ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? मदर. When I want to know about the past, अब हमें पास्ट के बारे में कुछ पूछना है, हमारी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में. I go to my. किसके पास जाओगे आप? ग्रैंडफादर, क्योंकि वो मोस्टली हमारे घर के हेड होते हैं, सबसे बड़े मेंबर हमारे घर के वो ही हैं. तो उनकी फैमिली की पूरी हमारी फैमिली की पूरी हिस्ट्री उनको पता होती है. When I want to share my secrets, I go to my सिस्टर. सिस्टर ऐसी एक हमारे घर की मेंबर होती है जो भले हमारे साथ कितना भी झगड़ा करे, बट जब हमें कोई भी सीक्रेट्स शेयर करने होते हैं ना, तो हम अपनी सिस्टर के पास ही जाते हैं. When I do something wrong, अब कुछ गलती हो गई है, हमें बचना है, तो क्या हम अपने फादर के पास जाएंगे? नो, नेवर. मम्मा के पास जाएंगे? नहीं, मम्मी तो पापा से भी ज़्यादा गुस्सा करेंगी. तो ऐसा कौन सा फैमिली मेम्बर है, सोचो. यस, यू आर राइट, ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर हम सबकी बहुत लविंग होती है और हमारी बहुत सारी गलतियाँ छुपा के रखती हैं. ऑन द सेम हैंड वो हमें समझाती भी हैं कि हमें और आगे मिस्टेक्स नहीं करनी हैं. ओके. नाउ कम टू पेज नंबर 29. एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस. अच्छा, आपके घर में ऐसी कोई प्रैक्टिस है? हम मोस्टली क्या करते हैं, घर में एंटर होने से पहले अपने शूज़ बाहर उतारते हैं. यस. और स्कूल में ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे हम शूज़ रिमूव करके जाते हैं? कंप्यूटर रूम और प्रेयर हॉल. जिन जिन स्कूल्स में प्रेयर हॉल होते हैं ना, प्रेयर हॉल के बाहर भी हम अपने शूज़ रिमूव करके जाते हैं. एंड वन मोर प्लेस इज़ देयर. यस, लैंग्वेज लैब. अच्छा, आप बता सकते हो इन सब में हम क्यों शूज़ रिमूव करके जाते हैं? प्रेयर हॉल तो क्या होता है हमारा? पायस प्लेस है, इज़न्ट इट? सेक्रेड प्लेस है जहाँ हम प्रेयर्स करते हैं, ऑफर. देन लैंग्वेज लैब और कंप्यूटर लैब में हमें क्यों शूज़ रिमूव करने चाहिए? बिकॉज कंप्यूटर्स आर फिटेड ओवर देयर, इज़न्ट इट? और अगर डस्ट अंदर जाएगी तो कंप्यूटर्स को ख़राब करेगी, कंप्यूटर्स हमारे ख़राब हो जाएंगे. पर घर के अंदर हम क्यों शूज़ बाहर रिमूव करके जाते हैं? सो दैट वी आर कीपिंग ऑल नेगेटिविटी आउट ऑफ द हाउस. हम घर के बाहर जब शूज़ उतारते हैं ना, तो बाहर की कुछ भी डस्ट या गंदगी या जर्म्स हम घर के अंदर नहीं लेकर आएँ, इसीलिए शूज़ बाहर उतारते हैं. प्लस बाहर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो घर के बाहर ही हमें छोड़ के आनी होती है. दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखा's फैमिली. सुरेखा इज़ अ गर्ल. उनके घर में ये एक प्रथा है
ऐसा एक कस्टम है। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़। सुरेखा के कुछ फ्रेंड्स हैं जो सुरेखा के घर में बिना शूज़ रिमूव किए आती हैं। सो व्हाट हैपन्स देन? सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। घर के बड़े हैं ना ग्रैंडफादर, उन्होंने ये कस्टम सबको सिखाए हैं, पर उनके घर में ये कस्टम्स ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली ही विल गेट एंग्री। तो वो क्या करते हैं? सुरेखा को गुस्सा करते हैं। ही बिकम्स एंग्री ऑन सुरेखा कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो अपने शूज़ बाहर ही रिमूव करके आएँ। नाउ वी हैव सम एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इट। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? हमारी फैमिली में भी ऐसे पर्टिकुलर कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ कस्टम्स होते हैं, बट अगेन इट डिफर्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। तो आपको अपने घर में अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है। इवन यू माइट हैव एक्सपीरियंस कि हमारे घर में क्या क्या रीति रिवाज हैं, तो वो आपको इस स्पेस में लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज विच प्रैक्टिसेस you and your family do to keep your house and the surroundings clean? हमें सराउंडिंग्स क्लीन रखने के लिए क्या करना होता है? घर की साफ़ सफाई करनी होती है, घर के बाहर जो भी हमारी बाउंड्री या कैंपस है उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, अपने कंपाउंड को क्लीन रखना होता है, एंड इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स हमें हमारे रूम्स, टॉयलेट्स, बाथरूम, वॉश बेसिन्स ये सब क्लीन रखने होते हैं। तो आप और आपकी फैमिली में क्या प्रैक्टिस है, किस तरीके से आप ये सारी साफ़ सफाई करते हैं, दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स। डज any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. ये तो हमने क्लास में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। जब आप क्लास में आते हो, जब हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हमारे क्लास में ही हमारे क्लासमेट्स की कुछ हैबिट्स होती हैं। कुछ क्लासमेट्स होते हैं जो पूरा दिन बोलते ही रहते हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, और कुछ होते हैं जो हर बात पे हंसते हैं, इज़न्ट इट? तो हमारे फैमिली मेम्बर्स की भी ऐसी कोई ना कोई हैबिट होगी। कोई एक होता है जो हमारे क्लास में या घर में बहुत ज़्यादा रोता है। ऐसे बच्चों को हम क्या बुलाते हैं? रोतलूराम, है ना? ऐसे सब हमने नाम भी दिए होते हैं। तो आपके फैमिली मेम्बर में ऐसे कौन से मेम्बर्स हैं जिनको पर्टिकुलर हैबिट है कुछ करने की? तो उनको आपको इमिटेट करना है। अपने घर में ये कॉपी करके दिखाना है अपने फैमिली मेम्बर्स को। और आप एक और काम कर सकते हो, उनको इमिटेट करके अपना वीडियो बना के हम लोगों को भेज सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारा जो स्कूल का ब्रॉडकास्ट नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। So you all are good children, you all respect your family members, especially elder members of your family. तो आप उनको किस तरह रिस्पेक्ट करते हो? चलो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। So our first point is we respect our elders by spending time with them. हम अपने एल्डर मेंबर्स के साथ अगर टाइम स्पेंड करें, उनकी बातें सुने, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, they feel respected. सेकेंड पॉइंट, बीइंग पोलाइट एंड ओबीडियंट। हमें हमेशा उनकी बातों को ओबे करना चाहिए और उनके साथ पोलाइटली हमें पेश आना चाहिए। और पोलाइटली पेश आने के लिए मैंने आपको 3 मैजिक वर्ड्स बताए ना, हमेशा सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू का यूज़ करना चाहिए विथ ऑल। देन थर्ड पॉइंट इज आस्किंग फॉर एडवाइस। हम कहीं भी प्रॉब्लम में आ जाएं तो वी शुड go and contact our elder people. Elderly people feel very honored if we take their advice. And then fourth is eating together. We should not leave them alone. उन्हें खाना खाने के लिए उनके रूम में अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, हमें उनके साथ बैठकर खाना चाहिए। और खाना खाते खाते अगर हम कुछ 1-2 बातें उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं तो दे फील गुड। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज डिस्कसिंग फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। हम उनके साथ अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में, अपनी ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करें तो भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स एंड यू कैन ऑल्सो गो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कस्टम्स। अवर लास्ट एक्टिविटी ऑन दिस पेज इज आस्क एनी ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड। जैसे आप सब शरारत करते हो ना, ऐसे ही हमारे
ओल्डर मेंबर्स जो हैं हमारे फैमिली के, उन्होंने भी अपने बचपन में शरारतें तो की होंगी। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, अपने किसी भी ओल्डर मेंबर से बात करनी है और उनसे ये कहना है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने बचपन की किसी शरारत के बारे में, कोई भी फ़नी इंसिडेंट उनके साथ हुआ हो या उन्होंने ऐसी कोई फ़नी बात की हो बचपन में, वो आपके साथ डिस्कस करें। नाउ चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर many more things are not given, but I have brought for you some more topics which are required to solve your workbook questions. So we will discuss such things. First of all, we will study about a family. हमने अभी तक क्या देखा है कि family is our first school, पर यह family होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। So now let us see the definition of family. A group of people who live together and are related to each other is called a family. Family क्या होती है, ऐसा ग्रुप लोगों का, ऐसा ग्रुप जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक और डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज मेक्स अ फैमिली। ऐसा ग्रुप जिनके बीच में कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशन है और आइदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ड्यू टू मैरिज, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज मेक्स अ फैमिली। वी लिव विद अवर फैमिली मेम्बर्स, और हम क्या करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देम एज डिफरेंट मेम्बर्स हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स से अलग अलग बातें सीखते हैं क्योंकि उन सब के रोल्स डिफरेंट हैं। हमारे फादर की कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली में, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो जाती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम उन सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं वो अब हम देखें। वी लर्न वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ जिनको बोलते हैं, गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स एंड customs from our family. That is why family is called the first school of the child. Now let us see types of families. Family may be big or small, joint or nuclear. It depends upon the number of members it has. हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी फैमिली स्मॉल फैमिली में इंक्लूड होती है या बिग फैमिली में। सो लेट अस फर्स्ट सी न्यूक्लियर फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैविंग ब्लड रिलेशन टुगेदर मेक अ स्मॉल एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। इट मीन्स व्हाट, कि जिस घर में पेरेंट्स और उनके बच्चे, एक या दो बच्चे, हैविंग ब्लड रिलेशन, ओके, आपस में उनमें ब्लड रिलेशन होता है, दे टुगेदर मेक अ स्मॉल फैमिली, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन। इट इज़ जनरली अ स्मॉल फैमिली दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ मेंबर्स। ऐसी फैमिलीज़ में नंबर ऑफ मेंबर्स कम होते हैं, या तो 2, 3 या मैक्सिमम अप टू 4 मेंबर्स। ओके, our second type of family is big family. Nuclear family becomes a big family when the parents have more than 2 children. एक न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली बिग फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है जब उस फैमिली में 2 से ज़्यादा किड्स हों या चिल्ड्रन हों। दिस टाइप ऑफ फैमिली में इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स along with parents and their children. ऐसी फैमिलीज़ में चिल्ड्रन तो होते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे तो होते हैं, बट ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो when your grandparents, parents and you siblings more than 2 children in a family live together, it is known as a big family. Our third type of family is joint family. A joint family consists of 2 or more families in a blood relation living together.
जॉइंट फैमिली क्या होती है? जिस फैमिली में एक से ज़्यादा फैमिलीज़, जिस घर में एक से ज़्यादा फैमिलीज़ जो आपस में ब्लड रिलेशन के थ्रू रिलेटेड हैं, बंधे हुए हैं, वो एक साथ रहते हैं। लेट अस सी, जॉइंट फैमिली में कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो ज़्यादा फैमिलीज़ कैसे एक साथ रह सकती हैं? मोर देन वन फैमिलीज़ कैसे एक साथ रह सकती हैं? उस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे अंकल्स एंड आंट्स जिनको हम बड़े पापा, बड़ी मम्मी, काका, काकी बोलते हैं, वो, और उनके साथ उनके बच्चे जो हमारे कजिन्स होते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ आर बिग, जॉइंट फैमिलीज़ बिग फैमिलीज़ होती हैं। वाई? As they consist of a large number of family members। वो big families क्यों कहलाती हैं? Because उनमें number of family members ज़्यादा होते हैं। Our next topic is family resemblance। Now what is this family resemblance? आपको याद है हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ की बातें की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, और मैंने बोला था रिजेम्बलेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ फैमिली रिजेम्बलेंस। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर सिमिलर टू ईच अदर इन वेरियस वेज। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो कुछ बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ओके, किन बातों में मिलते जुलते होते हैं वो देखें। दे हैव सम सिमिलर फीचर्स। फीचर्स मतलब हमारे फेशियल जो बनावट हम बोलते हैं, लुक्स की बात करते हैं, हम दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, हमारा फेस एक दूसरे से मिल सकता है। एंड ऑल्सो हैव सम ऑफ द सिमिलर हैबिट्स, और हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, हमारा नेचर एक दूसरे से मिलता जुलता हो सकता है। दिस इज कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। इसी को हम बोलते हैं फैमिली रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता। ओके, एग्जाम्पल में हम देखें, आईज एंड हेयर कलर। हमारे आईज का कलर एक जैसा हो सकता है, हेयर का कलर एक जैसा हो सकता है, इवन हेयर का टेक्सचर, किसी के बाल बिल्कुल कर्ली होते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स में 2 या 3 मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके कर्ली हेयर हो और ब्राउन हेयर हो, और बाकी के 1-2 मेंबर्स का ऐसा हो सकता है कि प्लेन हेयर हो और कलर भी ब्लैक हो। ओके, वे ऑफ वॉकिंग हैबिट्स में आ जाएगा, चलने का तरीका, टॉकिंग बात करने का तरीका, स्माइलिंग एक्सेट्रा। तो मोस्टली क्या होता है, जो घर के बच्चे होते हैं ना, वो या तो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। एंड इवन इन सम केसेस इट कैन बी सीन कि वो अपने अंकल्स और आंट्स पर गए हों। दैट इज नोन एज फैमिली रिजेम्बलेंस। एंड चिल्ड्रन, अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज 4th टॉपिक इज लिविंग लाइफ विद द फैमिली। मेंबर्स ऑफ फैमिली लिव एंड वर्क विद ईच अदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं। ओके, दे शेयर एंड केयर एंड फुलफिल द नीड्स एंड ड्रीम्स ऑफ ईच अदर। वो सब एक दूसरे के साथ सारी बातें, सारी चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एंड दे फुलफिल द नीड्स एंड ड्रीम्स। एक दूसरे की ज़रूरतें, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए सब मिलजुल के काम करते हैं। Parents work, earn money and fulfill the needs of their family. Parents मतलब father and mother both. Nowadays both are working, both are earning money for the family. क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली की जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करना है, हमारी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है। Children obey their parents and other elders in the family. जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को और उनके फैमिली मेंबर्स में जो भी बड़े लोग हैं, जो भी एल्डरली पीपल हैं, उन सबको ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प देम इन सिंपल टास्क। और घर में अपने बड़ों की छोटे मोटे कामों में हेल्प करते हैं। आप सब करते हो ना अपने पेरेंट्स की हेल्प, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हो कामों में, उनको पानी पिलाना, उनके लिए खाना परोस के लेके जाना, और उनके छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, मेडिसिन देना, टीवी ऑन या ऑफ करके देना, ये सब क्या है, हेल्पिंग देम इन देयर वर्क। फैमिली मेंबर्स एंजॉय मेनी एक्टिविटीज टुगेदर। और काम के साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो
फैमिली मेम्बर्स एक साथ एंजॉय करते हैं। दे गो फॉर अ मूवी और अ पिकनिक। एंजॉयमेंट में क्या आ जाता है, या तो हम एक साथ मूवी देखने जाते हैं, कभी कभी हम पिकनिक पर जाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। ये तो हमारी स्पेशलिटी है इंडियंस में कि हम अपने सारे फेस्टिवल्स एक साथ मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं। एंड अदर स्पेशल ओकेजन्स, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, ये सब तो हम बहुत एंथुसियास्टिकली मनाते हैं। So let us revise some important points. Very first and important point you have to remember is the family members of the family are called relatives of each other. एक ही फैमिली में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, relatives. They share and care and fulfill the needs and dreams of each other. एक दूसरे के लिए शेयर एंड केयर की भावना और एक दूसरे की नीड्स, जरूरतें और सपनों को पूरा करना। Members of the family live and work with each other. This is very important कि वो सब एक साथ मिलके रहें और मिलजुल के काम करें। तो ऐसा तो हम सब हमेशा करते हैं। And if any families are not doing this, if you are not living together happily, start doing it. We have learned so many important points in this chapter, and I hope all these concepts are clear to you. So we will meet in our next section with a new chapter. Till then,